All right. So let's begin today's lesson. And as you can all see that today's lesson, we will just continue and we'll begin with another short stories. 3 short stories हैं आपके syllabus में. One, the postmaster is almost done. And second is who will send me, Arpita, will you, or who will send me, who sent me the attendance list day before yesterday? So Saloni has sent it to me. I'll send it to you. Okay. No, I got the day before yesterday's one, I think. No, So okay, you I send will it. send you today. Okay, fine. So you'll send me for both days, right? Okay, sir. Just give me a moment while I pull up the screen to share with you all. It's just taking a little while. And, can you see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. the first part was the story about the postmaster, which we did last time. And today, the postmaster, I'd just like to tell you that it is a very beautiful story about human relationship. जो आपस में जो रिश्ता होता है, इसमें कैसे जो कोई अजनबी व्यक्ति होता है, some stranger, लेकिन उसके साथ आपकी बहुत ही अच्छा आपका ये हो जाता है, relation हो जाता है. That person is a complete stranger. You don't know that person. लेकिन समय के साथ जो है वो you develop a very close bonding with that person. ये था the postmaster. Although they belong to different class, उनका आर्थिक वर्ग दोनों का अलग-अलग था. एक well to do family से थे, पढ़े लिखे थे, और दूसरी एकदम अशिक्षित और अनाथ. But still they developed a bond. They developed a bond and एक अच्छा, तो ये जो इंसानी रिश्तों के बारे में ये कहानी थी, लेकिन वो बॉन्ड
आवाज नहीं आ रहा है। Can you all hear me? Yes, sir. ये बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं अपना पढ़ाते जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो ऐसे में अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो somebody can call me. Aparna, you can give me a call. सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना? I will know. फिर मैं फिर से लॉग इन करूंगा. Next. Okay, next time. Let me again begin sharing the screen. Okay, I think I trust that all of you can see my screen. All right. Yes, sir. So this particular story is a very touching story, and this is about. Let's look at the summary, the key points. A giant. मैं पूछ रहा था, selfish giant. So, do you understand the meaning of selfish? Can someone tell me what exactly is the meaning of selfish? Sir, Swarthi. He thinks only about himself, sir. Right, himself or herself. Selfish can be a male or a female. So it's not an attribute which is limited to the masculine gender. It can go to the females also. So, but you're absolutely right. So selfish is a person who just thinks about himself. दूसरों के बारे में उसको कोई. So similarly, यहाँ पे भी people are still joining. Roli Sharma has entered the waiting room. और हर बार मुझे स्क्रीन अनशेयर करना पड़ता है किसी को एंट्री देने के लिए. Almost 16 minutes late. So the key points, जो story का जो key points है वो क्या है? A giant ये एक fictitious story है. Fictitious मतलब एक कल्पना के आधार पे. तो यहाँ पे लेखक ने एक giant की संरचना की. He has built up a story on one of the characters who was a huge, big giant, a death. So a giant had a beautiful garden. It had soft green grass and 12 peach trees. So you must remember 12 peach trees. School children used to visit it to play there in the evening. When they came from school, जब भी स्कूल से लौटते थे तो वहां पे बच्चे अपना जाकर के खेलते थे. आसपास और कोई गार्डन नहीं था, वही एक गार्डन था. School children used to go and play there. Once the giant went to see his friend. Giant का एक friend था. And his name was Karnish Ogre. वो भी एक दैत्य था, एक राक्षस था. In fact, अगर आप ये word को search करेंगे तो Karnish Ogre. An ogre is a person who is. An ogre is a person who actually eats human beings. He's a man-eater.
ये बंदा भी एक मैन ईटर था, इसका फ्रेंड, but the giant was not a man eater. He was a friendly guy. So he has a friend, Cornish ogre, वहां पे वो जाते हैं. और giant लोग का समय सीमा भी जो है ना, जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाएंगे तो 1 घंटे के लिए जाएंगे, 2 घंटे के लिए जाएंगे, 2.5 घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन giant लोग का जो समय सीमा था वो 7 years के लिए अपने फ्रेंड के पास चला जाता है. Not for a few hours, but for 7 years. So after a period of 7 years, he comes back. हेलो He सर. comes, yes. सर कुछ लोग बेटिंग में हैं. क्या करें, उनको आने दें कि उनको छोड़ दें? उनको छोड़ ही देते हैं, ठीक है. आने दीजिए सर. नहीं तो जब समय पे नहीं कोई आएगा तो मेरा काम यही है कि खाली गेटकीपर की तरह वेटिंग रूम पे खड़े रहने का. सर छोड़ दीजिए सर, आकर डिस्टर्ब करता है सर क्लास को पूरे. वही तो कह रहे हैं. अब हमको जानते हैं नेटवर्क नहीं ना सर, गांव एरिया में सर नेटवर्क नहीं ना रहता सर. तो फिर आएगा तो क्या, फिर नेटवर्क जब नहीं है तो कैसे एंट्री कर रहा है? नेटवर्क के लिए तो चाहिए एंट्री के लिए. नहीं सर, बार बार सब डिस्टर्ब कर रहा है, छोड़ दीजिए. नहीं सर आने दीजिए. ऐसा नहीं है कि रोली, who's रोली? एक बंदा है जो रोल नंबर 13. और रोली कहाँ है? रोली शर्मा. She's not even speaking. Roli Sharma, can you hear me? Yes, sir. You also came in late. Why? Sir, network issues. What network issue? तो आप आई कैसे अगर नेटवर्क इशू है तो? और इतनी देर से आप यहाँ पे बनी हुई हैं, तो नेटवर्क इशू होता तो आप या तो फिर एग्जिट कर जाती. सर फिर से हॉटस्पॉट लेकर के ऑन की. सॉरी सर. प्लीज कम ऑन टाइम, क्योंकि मुझे बार बार स्क्रीन शेयर करके जाना पड़ता है. कैन यू सी द स्क्रीन, द स्क्रिप्ट समरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So he goes to his friend and he comes back after 7 years. Once the giant went to see his friend, the Karnish ogre, he stayed at his house for 7 years. क्योंकि उन लोग दैत्य लोग थे तो उनका टाइम स्टैंडर्ड भी वैसे ही था. हमारे 2-2.5 घंटे उनके 7 साल के बराबर हैं. So the Karnish ogre, he stayed at his house for 7 years. After that, he returned to his own castle. कासल जो कहा जाता है वो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा जो यूरोप में होते थे उन लोग के घर को कासल कहा जाता है. कासल. This was a castle. So he comes back अपने घर पे. जब वो घर पे पहुंचता है तो what he sees is my garden. He sees children playing. He sees the children playing in his garden. So he's selfish. He gets very angry. वो कहता है कि my garden is my own garden, he said to himself. So he built a high wall around it. ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं? मेरा गार्डन है तो मेरे गार्डन में कैसे कोई unauthorized person आकर के खेलने लग रहा है? तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है. और उसने चारों तरफ से एक बाउंड्री खड़ा कर दिया so that nobody can come in. And not only a boundary, he also puts up a notice board declaring that trespassers will be prosecuted. Trespassers मतलब बिना इजाजत के या unauthorized people, जो कि वहां पे होने का औचित्य नहीं है उसका, उन लोग पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. Prosecuted मतलब कानूनी कार्रवाई करना. So it was clear that he had become selfish. अब क्या होता है भाई? Now the children felt very sad. They had no place to play, so they played outside the garden, around the wall. अंदर नहीं घुस सकते थे. Time went on. In the spring, वसंत ऋतु आया. Spring, flowers grew all over. But in the giant's garden, there was no spring. There was absolutely no spring. It was just cold winter. There was no summer also.
and it was always winter there. यानी साल के 12 मास वहां पे बर्फ जमी रहती थी. नॉर्थ विंड, एक बहुत ठंडा और खूब तेज बहने वाला हवा था, वो रहता था, और ओले पड़ते रहते थे जैसे शरद ऋतु में होता है. So it was always winter there. Neither birds nor flowers could be seen there. Only snow and frost covered the trees. Frost कहते हैं जो जमा हुआ बर्फ होता है ना, जो हार्ड हो जाता है जम के. It's frozen. और snow होता है सॉफ्ट, बर्फी होता है लेकिन सॉफ्ट होता है. और ये होता है फ्रॉस्ट, मतलब परमानेंट इसको कहते हैं. बहुत सख्त, उस पे गाड़ी उड़ी फिसलती है. स्नो पे नहीं फिसलेगा, लेकिन आइस पे या फ्रॉस्ट पे फिसलेगा. So once the giant and the giant wondered why there was no spring in his garden. वो सोचता था कि अरे वसंत ऋतु आया नहीं, बाकी अगल बगल अड़ोस पड़ोस में सब जगह है, उसके यहाँ नहीं होता. Once the giant lay in his bed awake. जगा हुआ था वो. Awake means he was not asleep. He heard a sweet music. A little linnet. Anybody knows what a linnet is? यहाँ पे दिया हुआ है. Anybody? So there सर it is पक्षी written a किसी प्रकार के bird. पक्षी होता है. A bird, Good. sir. हाँ, एक ऐसा बर्ड होता है जो भारतीय महाद्वीप में नहीं पाया जाता है वो, ठीक है ना. It's only found in Europe. And it sings very sweetly. बहुत मिठास, कोयल की तरह वो भी आवाज उसका बहुत अच्छा होता है. So he heard sweet music. A little linnet, a bird, sang outside his window. The music appealed to him. बड़ा आकर्षित किया उसको म्यूजिक, क्योंकि इतने महीनों बाद वहां पे म्यूजिक हुआ था. क्योंकि उसके गार्डन में तो वसंत ऋतु आता ही नहीं था, तो ना मधुमक्खियां थी, न पक्षी थे, वहां तो हमेशा बर्फ ही बर्फ रहता था. So the sweet smell of flowers passed through his nostrils. Nostrils मतलब नाक को कहते हैं nostrils. तो जो फूलों की महक जो है उसके नाक में आती है. He was amazed क्योंकि यहाँ तो हमेशा शरद ऋतु रहती थी, winters. So he saw the most wonderful sight. नीचे जब वो झांका अपने घर से, उसका दिल खुश कर देने वाला एक नजारा देखा. क्या देखा भाई? Children had crept through a hole. Children sat on the branches. Branches पे बैठे हुए थे और उसके गार्डन में खेल रहे थे. और उन्होंने दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया था, होल, और उसी होल से अंदर वो लोग पहुंच गए थे. तोड़ा नहीं था, सिर्फ एक छेद कर दिया था छोटे बच्चों को अंदर आने के. So the trees were covered with flowers. In the furthest corner, देखिए ये एक ऐसा वर्ड है, furthest. जो सबसे दूर होता है उसको फारर या फारेस्ट नहीं कहते हैं, ठीक है ना, उसको furthest कहते हैं. तो ये स्पेलिंग होता है, जो सबसे दूर है, not farthest but furthest. So ये है. So in the furthest corner of the garden, a little boy was sitting. एक छोटा सा बच्चा. He was too small to climb on the branch. वो पेड़ के टहनी पे चढ़ने में बहुत ही छोटा था, वो चढ़ नहीं पा रहा, और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था. Bitterly मतलब काफी जोर जोर से. The giant went up to him and kissed him. इतना छोटा प्यारा बच्चा. He kissed him and he picked him up and placed him on a branch. यानी एक टहनी पे उसको बिठा दिया, क्योंकि वहीं पे जाने के लिए वो रो रहा था. वो बच्चा भी जायंट को कुछ देखा नहीं, ना वो घबराया कि अरे इतना बड़ा दैत्य या कुछ भी. वो पहले से रो रहा था, तो उसके आंख में आंसू भरा हुआ था. So he did not cry.
उसको देख के डरा भी नहीं। अब ये चीज देख करके जायंट को रियलाइज हुआ कि ओहो, व्हाट अ मिस्टेक, मैंने बाउंड्री वॉल बना दिया है कि बच्चे आ ना पाए। ये बहुत बड़ी गलती मैंने की। और उसने क्या किया? तो नाउ द जायंट नॉक्ड डाउन मतलब दीवार को गिरा दिया, द गार्डन wall. He felt sorry for building it. When children saw him, they ran away. भाई बच्चे तो उससे डरेंगे ही। When children saw him, they ran away. The garden became winter-like again. फिर से बाउंड्री तो तोड़ दिया, लेकिन कोई बच्चे आते नहीं थे। फिर से वहां पे गार्डन जो है winter-like बन गया, बसंत ऋतु खत्म। He called out the children and said, "It is your garden. Come and play freely." बच्चों को बुला करके उसने बोला। In the evening, शाम के टाइम में स्कूल के बाद बच्चे आते थे खेलने के लिए वहां पे। So in the evening, when they came to him to say goodbye, मतलब खेल, उन्होंने पूरे दिन गार्डन में उसका खेला और खेलने के बाद उसको गुड बाय बोलने आए, क्योंकि अब वो लोग डर नहीं रहे थे जायंट से। और कहानी का नाम भी चेंज हो जाना चाहिए। पहले था सेल्फिश जायंट, बट नाउ ही वाज नो लॉन्गर सेल्फिश। अब वो सेल्फिश नहीं रहा था। So many years passed, the giant had become so then he asked, जब वो लोग गुड बाय बोलने आए बच्चे, तो बोला कि then he asked them about the little child, जो छोटे बच्चे को उसने देखा था, डाल पे चढ़ाया था, तो वो बच्चा कहाँ है? लेकिन किसी ने उसको देखा ही नहीं था। Nobody had seen that little boy, that little child. So everybody said, "We don't know. I don't know what child you're talking about." हम लोग के साथ तो नहीं आता था कोई। खैर, and जो उस बच्चे से जायंट को खास प्यार था। He really loved that child. So he was he went downstairs and walked near him. However, he felt angry to see his wound. Sorry. मैंने एक दो लाइन skip कर दिया। So many years passed. बहुत से साल गुजर गए। वो छोटा बच्चा फिर कभी नहीं दिखा। The giant had become old. He could not play anymore. One day, suddenly, he saw the little child he had loved. अचानक उसको वो बच्चा एक दिन दिख गया। That little child, he saw him. So these are the wounds. Sorry. He went downstairs. वो बच्चा दिखा तो वो नीचे सीढ़ियों के भागा and walked near him. उस छोटे बच्चे के पास गया। However, he felt angry. जो giant था वो बड़ा गुस्सा गया। क्यों? क्योंकि उसने उस बच्चे के हथेली पे wounds देखा। wound यानी जख्म देखा। उसके पैर पे भी जख्म देखा। An injury. So he felt very angry to see the wounded palms and feet. Feet मतलब पैर। On asking who had wounded him, उसने little जो छोटे बच्चे से पूछा, ये किसने किया ये? Very angry. तो बच्चा क्या बोलता है? These are the wounds of love. At this, the giant fell on his feet. ये सुना वो giant, तो वो उस बच्चे के पैर पे गिर गया। बच्चे ने क्या बोला उसको? I'll let you play in my garden, which is paradise. I will let you play. और paradise मतलब ये बात कर रहे हैं स्वर्ग की, जन्नत, ठीक है? That is what he is referring to when he says, "I will let you play." वो छोटा बच्चा जो है वो एक जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में, ये लेखक जो है ऑस्कर वाइल्ड,
ये क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत लिखते थे और धार्मिक background था इनका. He believed in God and he wrote quite a few stories about them. So he says that these I will let you play. Satish Ram. आ जाओ भाई Satish Ram. Okay, so many years so I'll let you play in my garden, which is paradise, said the little child, because you let me play in your garden once. तुमने मुझे, लिटिल जायंट को कहते हैं कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था एक बार बहुत पहले, इसलिए मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले चलूंगा, जो कि पैराडाइज. पैराडाइज मतलब स्वर्ग को कहते हैं. So in the evening, when the children visited the garden, they saw the giant lying dead. उसी गार्डन में वो मरा हुआ पड़ा था. अब इसका जो एक्चुअल इनर मीनिंग है, मेटाफोरिकल मीनिंग जो होता है, वो इसका अब नीचे आप लोग देखेंगे. एक रिकैप है उस स्टोरी का, फिर से एक बार. So a giant had a large, beautiful garden. He was selfish. While he was away to visit a friend, children used to play in that garden. For 7 years, 7 साल के लिए वो अपने दोस्त से हैं. When the giant returned after 7 years, he was angry to see the children playing there. He built a high wall around the garden to see that the children could not come in. As a result, the trees refused to bear. उसके इस करतूत की वजह से जो पेड़ पौधे थे वो फलना बंद कर दिए. They would not flower, उन पे फूल या फल नहीं लगे थे. So he built इस बात के प्रोटेस्ट की वजह से. As a result, the trees refused to bear flowers and fruits. Spring refused to visit his garden. वसंत ऋतु अगल बगल सब जगह आती थी, लेकिन उसके गार्डन में नहीं आती. वो सब विरोध कर रहे थे सेल्फिश जायंट का. हाउ सेल्फिश, यू आर नॉट अलाउइंग द चिल्ड्रन टू प्ले. सो ओनली द फ्रॉस्ट मतलब वही जो जमा हुआ बर्फ, हार्ड बर्फ, द फ्रॉस्ट. हेल किसको कहते हैं? एनीबॉडी? नोबडी नोज हेल. Arpita, can you hear me? Yes, sir. Repeat once again the question. I'm saying, what is the meaning of hail? Hail का मतलब क्या है? किसी को और नहीं पता है? Anybody else? बारिश में जो बर्फ गिरता है ना सर. हाँ, बारिश में उसको ओला कहो नहीं है सिंपल लैंग्वेज में. तो हम लोग के यहाँ भी होता है ना ओला, नहीं? हाँ, तो ओला को ही हेल कहा जाता है. हेल. तो हाँ, तो वो सब उस गार्डन के चारों तरफ थे. द फ्रॉस्ट, द हेल, द नॉर्थ विंड एंड स्नो, दे डांस्ड इन द सेल्फिश जायंट्स गार्डन. पूरे साल वो लोग डांस कर रहे थे, वो लोग पिकनिक मना रहे थे पूरे साल. So once the selfish giant helped the little boy to sit on a tree branch, he noticed the miracle. Miracle मतलब एक अजीबो हरकत, एक आश्चर्यचकित करने वाला एक घटना. क्या था भाई? कि एक बार उस बच्चे को टहनी पे उठाया, अगले बार से ही वहां पे सब बर्फ उर्फ गायब हो गए. और जिस टहनी पे बैठाया था बच्चे को, वो अगले दिन वो टहनी फूलों से भरा हुआ था. It was laden with flowers. Laden मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक लदा हुआ. The boy was Christ himself.
यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आप लोग को बताया जा रहा है कि दिस वाज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ एंड दैट मिरेकल कि वहां पे फिर से बर्फ खत्म हुआ और पेड़ पौधे पे ये सब होने लगे, फल उगने लगे, फूल उग रहे थे और वो गार्डन फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। सो ये एक चमत्कार के अलावा, मिरेकल यानी एक चमत्कार के अलावा कुछ नहीं था। जब से उसने उस बच्चे को हेल्प किया, उस बच्चे को विनम्रता से, प्यार से अपने गोद में उठा करके ब्रांचेस में बैठाया, तब से ये चेंज कर गया। सो ही वाज क्राइस्ट हिमसेल्फ। आप सबको पता होगा कि वो जो वुंडेड हैंड्स थे और वुंडेड फीट था, यू ऑल नो दैट जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। एक लकड़ी के क्रॉस पे उनको उनके हाथों में कील ठोक दिया गया था और क्रॉस से उनको नेल कर दिया गया था। नेल मतलब कील के जरिए। ईसा मसीह। हाँ, ईसा मसीह, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। सिमिलरली उनके पैर को भी बांध, दोनों पैर को एक के ऊपर एक चढ़ा करके, और जिसमें हम लोग जूता पहनते हैं वो वाले पोर्शन में एक बड़ा सा कील दोनों पैर को छेदते हुए और लकड़ी के क्रॉस में गाड़ दिया गया था। तो वही निशान था, वो इंजरी था उस बच्चे के पास भी। जब वो पूछता है सेल्फिश जायंट, एंग्री होकर के कि हाउ, हु हर्ट यू, किसने तुम्हें चोट पहुंचाया, तो कहते हैं कि दीज आर द सीड्स ऑफ लव, ये तो प्यार की निशानी है। तो वो इसलिए प्यार की निशानी कहते हैं क्योंकि जिन लोगों ने किया था, जीसस क्राइस्ट ने उनको माफ कर दिया। और माफ करना क्रिश्चियनिटी धर्म का एक परम कर्तव्य है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल। Thou shall forgive. Forgive मतलब जो तुम्हारा बुरा करे उसको भी माफ कर दो। इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट ही थे जिनके हथेली और पैर पे उस कील का निशान था, जहां लोगों ने उनको क्रॉस पे टांग दिया था। So he bore nail marks on his palm and feet. He kissed the giant whose heart was changed. So now उसका हृदय परिवर्तन हो गया giant का. So he was no more the selfish giant, but he was kind once again to all children. And Jesus Christ kissed him. And the next day in the evening, when the children came, they found that he had died. He was dead. So God had promised him paradise. तुमने मुझे अपने गार्डन में आने दिया, मैं तुम्हें अपने गार्डन में आने दूंगा, और मेरा गार्डन पैराडाइज है। वो उसको अपने साथ ले गए स्वर्ग। So at last the little boy took the giant to his own garden, the paradise, as a reward. पुरस्कृत किया उन्होंने selfish giant को. Why? Because he had given up his selfishness. He had given up his selfishness. कोई क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में, कोई सवाल? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है ये, ठीक है? Any questions? So down below you will find the helpline के अंडर में दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, question and answers. So you can do that, you can practice that. Why is the giant called selfish? Why is the giant called selfish? Because the giant did not want to share his happiness with anybody. He wanted to enjoy his garden all alone. बच्चों को घुसने नहीं देना चाहता था। जब उसने देखा कि कुछ बच्चे आ गए हैं, तो उसने दीवार खड़ी कर दी चारों तरफ से। So that is why the giant is called selfish. है कि नहीं? You can understand this entire thing? Yes. Question answers? So do this. If you don't understand anything in the next class, we will be happy to discuss this particular thing. और मैं अगर आपके जो पार्ट जो नहीं समझ में आए हैं,
but do the questions and answers also. See what effect did the linnet song have over hail and the north wind? Hail मतलब उस पे क्या प्रभाव पड़ा लिनेट के गाने का? The linnet's song frightened the hail and north wind. जो हवा तेज बहती थी, जो वहां पे डेरा जमाए बैठे थे, वो लोग डर गए लिनेट की आवाज से, and they took refuge in one corner of the garden. यानी गार्डन के एक कोने में वो लोग सीमित हो गए और बाकी जगह वसंत ऋतु आ गई. तो लिनेट का सॉन्ग जो है वही तो सूचक था. That was the harbinger of the information that spring had come. वसंत ऋतु आ गई, तो वो था. क्या हार्बिंजर कहते हैं, मतलब द मैसेंजर. तो वो जो लिनेट पक्षी था वो एक मैसेंजर था. ये लिनेट पक्षी जब वसंत ऋतु होता है उसी टाइम में वो बोलती, तो उनको भगा दिया. नॉर्थ विंड बहुत विध्वंसक, जैसे हम लोगों ने वो किया था ना वेस्ट विंड. तो वेस्ट विंड एक दूसरे टाइप का हवा है जो बहुत तेज बहता है वो, लेकिन ये नॉर्थ विंड भी बहुत तेज बहता है और आंधी तूफान और विनाश लेकर के आता है. तो वो उस गार्डन में डेरा जमाए हुए था. हेल, ओला, वो डेरा जमाए हुए थे. स्नो एंड फ्रॉस्ट, ये सब डेरा जमाए हुए थे. लेकिन जैसे ही लिनेट ने वो बात वो बोला, और मेन शुरू हुआ था बिकॉज द जायंट picked up that small child and put him on the branches. ब्रांच में उसको बैठा दिया जहां वो बच्चा बैठना चाहता. उसके अगले दिन से ही बदलाव आ गया. ठीक है? So do these questions and we'll discuss that next time. Okay? On Tuesday. And we have to, the other parts of this thing are also left, the syllabus. See, sub question answers 12, 13, ये दिया हुआ है यहाँ पे. And then we'll do the country of the blind, right? The country of the blind by H.G. Wells. This is the third short story. और इसके बाद फिर 3 essays हैं और Merchant of Venice एक play भी है, नाटक play. ठीक है? So we'll do this next time. Yeah, so Arpita, you know what to do. Thank you. Thank you, everybody, and goodbye for today. Thanks. Thank you. Have a good day, sir. You too.